बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ। नशा किसी भी चीज़ का हो बुरा होता है, वो शोहरत का नशा हो, दौलत का नशा हो या मंशियात का नशा हो। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं उन लोगों पर जिनको माशरा जो है वो तस्लीम नहीं करता, जिनको माशरा जो है धकेलता है, धक्के देता है, उनको जो वो तस्लीम नहीं करता। वो अफराद जो नशे के आदी होते हैं, वो नशा जो है मंशियात का जब वो नशा करते हैं तो उनकी माशरती ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, इखलाकी ज़िंदगी भी तबाह होती है। वो नशा क्यों करते हैं, उनकी सेहत पर इसके असरात क्या होते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये की नाम जनाब? शौकत। शौकत साहब केड़ा नशा करते हो? वाइट वाइट किन्ने साल तू कर रहे हो? 15 साल हो गए। दिल नहीं करता कि नहीं छड़ दईए? करने दिल करता और फंस गए छड़िए तो लून दर्द कर। अच्छा। काम शाम नहीं होता, बंदा उठ नहीं सकता। एक करिए तो चली जाए। तो हुकूमत ने इदारे बनाए ने नशा छड्डण वास्ते, उत्थे जाके दाखिल हो जाओ। कोई फायदा नहीं है, उत्थे भाई उत्थे नशा लभ जाता, दाड़ा छड़ना था फिर अच्छा, उत्थे भी नशा लभ जांदा है? लभ जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਆਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ 150 ਦਿਓ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ 150 ਲਾਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੰਗ ਛੰਗ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇ? ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਘਰ ਕੇ ਲਵਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਚਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਦੇ ਕੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਹੈਂ? ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਘਰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਅੱਛਾ। ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਸ਼ਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕੀਆ? ਸ਼ੌਕੀਆ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਪੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਟ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਪੀਤਾ, ਰੇਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੇੜ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? 6 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਰੁੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਅੱਛਾ। ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਕਿਤੇ? अंदर होटल है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? कौन सा नशा करते हो? नशा करते हैं आप? कौन सा नशा करते हो? चर्च पीते हो? कितने साल से पी रहे हो? 2 साल से? यार तुम्हारी उम्र बड़ी छोटी है, नौजवान आदमी, किसने लगाया नशे पे? पहली बार किसने लगाया नशे पे? कितने बहन भाई हो? 2। एक बहन एक भाई है? माँ बाप नहीं है तो ख्याल नहीं आता कि बहन जो घर में है उसका क्या बनेगा? हैं? भाई है तो
تو خیال نہیں آتا بڑے بھائی کا کہ وہ سہارا بن جاتے, ساتھ تم ساتھ کام کرتے اپنے آپ چھوڑا, ہیں؟ اپنے آپ چھوڑا. گھر سے نکال دیا, کیوں نکال دیا؟ ویسے ہی کہتا ہے اپنی جگہ بناؤ, اپنا رہو. اچھا, ہم نے بولا ٹھیک ہے, ہم اپنا کماتے تم اپنا کماؤ. یہیں پہ سوتے ہو؟ یہ پناہ گاہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی پناہ گاہ بنائی ہے حکومت نے, یہاں کیوں نہیں سوتے جا کے؟ آئی ٹی کارڈ نہیں بنا, ہیں؟ آئی ٹی کارڈ نہیں بنا, آئی ٹی کارڈ نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ کے بغیر آپ کو جانے نہیں دیتے. اچھا, تو آپ یہ ٹائم پاس کیا کام کرتے ہو؟ کام میں ہوٹل کا کرتا ہیں؟ ہوں, ہوٹل کا کام. ہوٹل کا کام کرتے ہو, تو نشے کے لیے پیسے جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہوٹل سے. اچھا, سارے پیسے نشے پہ لگا دیتے ہو؟ نہیں. خیال نہیں آتا کبھی نشہ چھوڑ دو؟ دل نہیں کرتا میں بھی آپ لوگوں کی طرح عزت باعزت روزگار کماؤں, میں چھوڑ دوں یہ زندگی کو زندگی ہے؟ وہ تو ہے بس, کبھی خیال آیا ہے؟ کبھی خیال آیا؟ خیال تو بہت آتا ہے. پھر چھوڑنے کے لیے ٹرائی کی, ہاں, چھوڑ. اچھا, ویسے ادھر یار دوست. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عمران بھائی, کتنے سال سے نشہ کر رہے ہیں؟ 5. کیا کون سا نشہ کرتے ہیں؟ پاؤڈر کا. کون دے کے جاتا ہے آپ کو یہ نشہ؟ تو پیسے کہاں سے آتے ہیں نشے کے لیے؟ اگر پیسے نہ ملیں تو کیا دل کرتا ہے, کیا کریں؟ نشے کی طلب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں پھر؟ اچھا, کیا دل کرتا ہے, کیا ہو؟ اچھا, گھر والے ہیں ماشاءاللہ, کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 بہنیں 4 بھائی. اچھا, تو کیا گھر والے گھر میں نہیں رکھتے, کیا کہتے ہیں؟ نشہ کرتے ہیں. دل نہیں کرتا کہ آپ بھی گھر سے سکون باعزت زندگی گزارو ہیں؟ اس کا دل نہیں کرتا. تو پھر کیوں کرتے ہو نشہ ہیں؟ سرکاری ادارے بنے, وہ آپ کا علاج کریں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دل نہیں کرتا کہ آپ وہاں داخل ہو جائیں, آپ کا علاج ہو, تو جاتے کیوں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. پتہ چلا ہے انشاءاللہ ہیں؟ انشاءاللہ جائیں گے. اچھا, تو یہاں پہ اس کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں؟ کہاں لگاتے ہیں انجیکشن؟ بازو پہ لگاتے ہیں, اور بھی کہیں لگاتے ہیں؟ اچھا, کس نشے پہلی بار کس نے لگایا نشے پہ؟ لگاتا ہے کہنے کا مقصد دل اپنا ہی چاہے تو وہی کیا کرتا ہے, کوئی کسی کو نہیں لگاتا. اللہ اللہ کرے نبی پاک. اچھا, نشہ کرتے ہو تو سگریٹ پیندے ہو؟ نہیں اچھا, تو میرے مزدوری کیوں نہیں کرتے وہ اللہ کرے گا, ہیں؟ اللہ کرے گا. اچھا, محنت نہیں کرنی. کپڑے تو ملے ہاں, وہ اللہ دے گا. اچھا صحیح ہے. ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਨਾਹਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਕੱਲ ਸਵਾ ਦੇ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵਾ ਦੇ ਕੱਲ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100-200 ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਪਨਾਹਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਸੋਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛਾ। 4 ਦਿਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾਰ. ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ. ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਾਹਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 10-12 ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਗਰਟ ਕਿੰਨੇ ਫੜਾਇਆ? ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ? ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਈ? ਪੰਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਰਸ ਪਾਉਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰ ਚੀਜ਼. ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ. ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ. ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਠੋਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੇਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ.
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम भाई आपका? शहरियार नाम है। शहरियार भाई, यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ तो सर काम के लिए आए थे। अच्छा। काम ढूंढने, रजाई गद्दों का मैं कारीगर हूँ ना। अच्छा। रजाइयाँ नहीं सिलती, उसका कारीगर हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ किसी ने बताया था इशरा पे कि यहाँ पनाह है इमरान खान की, यहाँ जगह देते हैं रहने के लिए, खाना पीना भी देते हैं। हमने बोला यार चलो चल जाते। यहाँ आए तो वो बोल रहा शनाख्ती कार्ड दो। सही अब है। जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ सर वो कहाँ खिलाए? कितनी उम्र है आपकी? 17 साल उम्र है मेरी। 17 साल है। कहाँ के रहने वाले हो? कराची का रहने वाला हूँ। कराची कहाँ से? मलिर। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो काम के लिए आया था, वहाँ के हालात बहुत ख़राब है ना। अच्छा बाहर सोने की वजह से जूते तक चले गए। अच्छा, हालत ऐसी हो गई है, कपड़ों वाला बैग रखा था सर के नीचे वो भी गया। सोते कहाँ पे हो? यही सो जाते हैं यहाँ पर, मुसाफिर खाना है, यहाँ 50 रुपए देकर रात गुजार रहे हैं अभी तो। अच्छा, यहाँ फुटपाथ पे भी सोते हो? नहीं, फुटपाथ पर तो अभी तक नहीं सोए। अच्छा, तो नशा भी करते हो? नहीं नशा, सिगरेट हैं? पीता हूँ। क्यों पीते हो सिगरेट? कभी कभी शौक में मिलेगा, वरना अच्छा, किसने लगाया आप उसको? स्कूल टाइम से लगे हैं। पता नहीं है कि गलत चीज़ है? गलत है, बहुत गलत है। हाँ, ठीक है, बस कोई इमरान खान को समझाए ये शनाख्ती कार्ड वाला सिस्टम खत्म कर दे, अच्छा वरना ये पता नहीं खुदा की कसम जिसकी हद नहीं है, लोगों की बददुआएं दे रहे हैं। शनाख्ती कार्ड क्यों खत्म कर दे? वो तो शनाख्त है ना पाकिस्तान की, तो आपका जिसके शहरी पास होने का नहीं है, सबूत है। जिसके पास नहीं है उसके लिए फ्री में करे। यानी कि आप ये कहते हो जो 18 साल का नहीं है, अगर हाँ। वो रहना चाहे तो उसके लिए कोई इसका कानून बनना चाहिए, कोई हिसाब किताब ऐसा धक्के हो। देके निकाला था इन लोगों ने बाहर। अच्छा, हाँ, तो आपसे पैसे भी लिए इन्होंने रहने के लिए? नहीं पैसे नहीं लिए, अच्छा। सिर्फ धक्के देके निकाल दिया बाहर। 3 दिन बाद? शनाख्ती कार्ड नहीं है, नहीं पहले दिन ही। अच्छा, हाँ, अंदर घुसा हूँ, बात करिए, धक्के देके निकाल दिया बाहर। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर, अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उन हज़रात के हवाले से जो नशा करते हैं, नशे की जिनको आदत हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहीद अफरीदी साहब, शहीद अफरीदी हार्ट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके सर आज भी आने का बहुत शुक्रिया। और आज के इस मौजूद में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद भट्टी साहब मौजूद हैं। आप फैमिली फिजिशियन हैं, इनसे पूछें कि जो लोग होते हैं नशे के आदी जो लोग होते हैं, इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब अपने जो है किस तरह करते हैं, और कि ये केसेस जो हैं ऐसे क्या वजूहात बनती है कि बंदा जो है नशे का आदी हो जाता है और फिर इससे जान छुड़ाना जो है वो किस कदर मुश्किल होता है। आगाज करते हैं शहीद अफरीदी साहब से। डॉक्टर साहब, आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आप बताइएगा कि जो नशे के जो लोग आदी होते हैं, ये नशे के जो लोग आदी हैं, इनके दिल पे असरात क्या होते हैं? इनका दिल किस तरह डैमेज होता है? कितनी डिजीज जो है हार्ट की इनको हो जाती हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? सबसे पहले तो हम ये करेंगे डिफाइन कि वो नशा किस किस्म का कर रहा है। ठीक है। तीन मेरे ख्याल में जो तरीकों से होता है। इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, स्मोक करते हैं और स्निफ करते हैं, या फिर आजकल वो जो टैबलेट फॉर्म में आई हुई है वो भी लोग करते हैं। इसमें जो हम इंजेक्टेबल वाले को अगर हम लें तो उसका तो जिस्म के ऊपर, यानी हार्ट के अलावा पूरे जो जिस्म के ऊपर इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले तो इसके जरिए इन्फेक्शन के जिस्म के अंदर जाने के होते हैं चांसेस। सही। जो इन्फेक्शन मुख्तलिफ जो तरह की जो हो सकती है, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, और इनके अलावा फिर ये जो हार्ट को जो करती है डैमेज, वो एंडोकार्डाइटिस हम उसे जो कहते हैं, यानी कि वो हार्ट के अंदर वाले हिस्से को सारे को डैमेज कर देती है। सही। और जो हार्ट के अंदर के वैल्व्स हैं उनके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी वो जो अमल हो जाता है शुरू, जिसके जरिए वो वैल्व लीक करना शुरू कर देते हैं। सही। और फिर वो वहां पे जो है ना वो इन्फेक्शन सिर्फ जो है ना वो नहीं रुकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी सवाल के हवाले से, कितना अरसा लगता है हार्ट को इस तरह डैमेज होने में? अगर कोई बंदा जो है ना ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो कितना अरसा लगता है कि उसका हार्ट डैमेज हो जाता है? ये डिफाइन हम नहीं कर सकते कि उसको जो कितना टाइम लगता है। बाज लोग होते हैं कि वो 6 महीने में भी ले लें, यानी 1 महीना भी ले लें, उनके हार्ट हो जाए डैमेज। बाज लोग 20-20 साल से कर रहे होते हैं नशा और उनका हार्ट नहीं होता डैमेज। सही। ये होता है कि बैक्टीरिया कितनी मिकदार में और कौन सा वाला बैक्टीरिया अंदर गया है उसको जो ना जिस्म के, क्या वो हार्ट की वैल्व डैमेज कर सकता है? उस बैक्टीरिया के अंदर इतनी जो ना ताकत भी है कि नहीं। एंडोकार्डाइटिस अलबत्ता इंजेक्टेबल फॉर्म में जो हम ड्रग्स लेते हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो एंडोकार्डाइटिस मेन चीज है जो वो जो है ना वो कॉज करती है। और वो फिर हार्ट के अलावा फिर बाकी भी जो है जिस्म के हिस्सों में जाती हैं, और वो बैक्टीरिया कहीं भी किसी भी जो ऑर्गन में जिस्म के वो इन्फेक्शन कर सकती है। सही। डॉक्टर नवीद साहब, आप बताइएगा किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं कि एक बंदा पेशेंट आपके पास आता है, फैमिली फिजिशियन है, लोग आते हैं आपके पास लेके कि ये ड्रग्स लेता है या नशा और अद्वियात लेता है, तो आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई ये नशा लेता है, और उसको किस तरह आप ट्रीटमेंट करते हैं उन लोगों का?
देखिए पहले तो मतलब दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि एक तो मतलब जो आपका नशा है वो जिसको हम एडिक्शन कॉमनली वो कहते हैं इंग्लिश में, सही। तो एडिक्शन और डिपेंडेंस, इसमें दो चीज़ें हम अलग-अलग कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जी जी। नशे में तो आपकी चाय भी नशे में आ जाती है, ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं उनकी भी वो कहते हैं जिसको खाने की एडिक्शन है, इसको चॉकलेट की एडिक्शन है, इसको पढ़ने की एडिक्शन है, सही। तो वो एडिक्शन में जो है ना बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं। नशा किसी भी चीज का बुरा है, सही, ऑब्वियसली। तो बाकी डिपेंडेंस में आपके वो चीजें आ जाती हैं जिनको छोड़ने से, जिनको ना करने से आपके जिस्मानी और जहनी असरात आते हैं। सही। तो ये दो चीजें हम, क्योंकि ये जो जब हमारे पास कोई आता है नशा करता है तो उसमें हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे नशा किस चीज़ का। अगर वो चाय का नशा कर रहा है तो फिर हमें तो कुछ करने की जरूरत है, सही, उसको साइकोलॉजिकली उसके ऊपर काम करने की जरूरत है अगर वो छुड़वाना चाहते हैं। इसी तरह से जो चीज़ें आपको डिपेंडेंस में डाल दें, वो नशा हम जिसको हम कॉमनली नशे में जिसका हम जिक्र कॉमनली करते हैं वो चीजें होती हैं जिसपे इंसान डिपेंडेंट हो जाता है, मंशियात का, जिसे हम कहते हैं कि ड्रग डिपेंडेंट है, ये फलां चीज का डिपेंडेंट है। तो आप देखेंगे ड्रग एडिक्शन जो है इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं होती, वो फैमिली उसको आइडेंटिफाई कर रही होती है, पेशेंट की हालत उसको आइडेंटिफाई कर रही होती है, तो वो बंदा मुआशरे में कारामद नहीं हो सकता। सही। तो वो जब भी वो नशा छोड़ेगा तो वो उसके लिए असरात आएंगे जिस्म के ऊपर। इसी तरह से जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो फिर जो एडिक्शन है उसको छुड़वाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है, लेकिन जो डिपेंडेंस है उसके लिए हमें फिर वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है क्योंकि जिस्म आदी हो चुका होता है चीजों का, वो उसको टेपर करने पड़ते हैं, आहिस्ता 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 छूट सकता है। एकदम से हम कहेंगे कि ये छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो उनके ऊपर ट्रीटमेंट प्लान्स डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू दी मतलब जो भी वो ड्रग ले रहे हैं उसके मुताबिक। सही। डॉक्टर साहब, अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जब बंदा जो है आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है जिसका हार्ट जो डैमेज होता है तो उसका इलाज, तरीका इलाज आप लोगों को क्या है, कितना टाइम लगता है उसका हार्ट रिकवर होने में उस तरह कि वो नॉर्मली जो है उसका हार्ट वर्क कर सके? पेशेंट अगर हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आ जाता है और वो आइडेंटिफाई हो जाता है, नॉर्मली जो नशा करने वाले पेशेंट है या जो लोग हैं वो अपने घरों में भी बहुत कम जाते हैं, जो मनशियात के आदी होते हैं। जी जी। कहीं जो ना सड़कों पे, फुटपाथों पे, ट्रक अड्डों पे कहीं ना कहीं वो होते हैं, पड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर जो ना होते हैं ऐसे जो नशे के साथ साथ यानी अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत वो कुछ चला रहे होते हैं, यानी इन जो कांटेक्ट रहते हैं। सही। वो पेशेंट हमारे पास जब आते हैं और जब हम पहला स्टेप रखते हैं, हमें हार्ट मरमर सुनाई देता है तो हम एको के लिए भेज देते हैं। एकोकार्डियोग्राफी में फिर जो डिफाइन हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका वैल्व जो है फलाना वैल्व इसका डैमेज है, वो लीक कर रहा है या वो वैल्व बंद हो गया, स्टेनोज हो गया, तो फिर उसके खून के टेस्ट किए जाते हैं। अगर उम्र उसकी 40 साल से ज्यादा है तो हम फिर उनकी एंजियोग्राफी भी करते हैं। अगर 40 साल से कम है तो एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती और फिर सीधा हम उनको ऑपरेशन थिएटर यानी 1-2 दिनों में जब भी हो जाता है, तैयार हो जाता है, ब्लड टेस्ट सारे ठीक आ जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और जो वैल्व डैमेज होता है उस वैल्व को अगर वो जो रिपेयर हो सकता है तो हम उस वैल्व को रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर यानी हमारी सबसे पहले जो ना कोशिश यही होती है कि उस वैल्व को हम लोग रिपेयर करें, जो इंसान का नेटिव वैल्व है जो उसके अंदर खुदा ने बनाया हुआ है। अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो फिर हम उसके अंदर दूसरा वैल्व डालते हैं जो मेटेलिक होता है। यानी 2 तरह के वैल्व आते हैं हमारे पास, मेटेलिक भी आते हैं और टिश्यू वैल्व भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर यंग लोगों में हम लोग मेटेलिक वैल्व डालते हैं और वो डाल के वो 7वें 8वें दिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह हमारे आम लोग हैं दवाइयां जो ना लेने का, नॉन कंप्लायंट होते हैं दवाइयों की तरफ, इसी तरह जो नशा करने वाले लोग हैं ये और ज्यादा होते हैं, यानी वो जो ना दवाइयां लापरवाह होते हैं। सही। तो उस जो ना वैल्व के साथ एक दवाई होती है वारफेरिन जो उसने लाजमी लेनी है। अगर वो जो ना वो नहीं खाएंगे तो वो फिर 7-8 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा स्टार्ट फिर उसको मसला हो जाएगा, वापस आ जाएगा और फिर हमें इमरजेंसी में जो ना ये ऑपरेट करना पड़ता है। तो हमारे यानी वैल्व चेंज करने के साथ साथ उसके दूसरे एस्पेक्ट पे भी हमें काम करना
यानी उनकी जो रिहेबिलिटेशन जो है सही। यानी किसी स्पेशलाइज्ड यानी कि डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि घर वालों की साथ केयर होना बहुत जरूरी है, फिर ही वो रिकवर हो सकेंगे। डॉक्टर नवीद साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने घर वालों की बात की कि एक बंदा नशे का आदी हो गया है, मंशियात लेता है, वो चाहता भी कि वो छोड़ दे, ठीक है, लेकिन घर वाले उसको तस्लीम नहीं करते, माशरा तस्लीम नहीं करता। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, वो फुटपाथ पे सोते हैं, वो फुटपाथ पे उनका जो ना ओढ़ना बिछोना बन जाता है, और वो उनका दिल करता है कि हम भी सर्दियों की रातों में सुकून से गर्म बिस्तर में जाके आराम करें, लेकिन घर वालों का कितना कंट्रीब्यूट है इन लोगों को बनाने में, क्या कहते हैं इस हवाले से? बीइंग अ डॉक्टर, आप जो कि पेशेंट्स आते हैं आप देखते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ जी, जाहिर है जी। देखिए, नशा एकदम से तो शुरू नहीं होता जी। नशा एक मतलब इसकी तारीफ ये है कि जी जब आप एक अरसे तक करते रहते हैं और आपका जिस्म आदी हो जाता है उस चीज़ का, उसको हम लेबल कर देते हैं कि ये नशा हो गया, ठीक है। और शुरू आपका वॉलंटरी होता है, आप खुद से करना चाह रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आपकी जिस्म मांग रहा होता है, आप खुद उस चीज को शुरू करते हैं। आगाज उस चीज का आप अपनी मर्जी से करते हैं। सही है। उस मर्जी के पीछे अवामिल हमें बहुत सोचने चाहिए। हमारे यहाँ पे फैमिली में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है तो बच्चे के सामने हो रही है। अगर डांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेहमानों के सामने डांट रहे हैं। बच्चे की कोई भी ऐसी उसको सही गलत, जिसको हम दो चीजें रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स कहते हैं, उनके ऊपर हमारे तवज्जो नहीं होती। आम फहम में फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये उसका रीइंफोर्सर है। उसको हम चॉकलेट साथ दे दें, टॉफी दे दें कि आपने अच्छा काम किया है, तो ये उसका रिवॉर्ड हो गया। ठीक है। तो हमारे ये जो इन चीजों के जो है ना, हम जब इन चीजों का बैलेंस हमारे दिमाग से वो हम ये जो हमारे अवामिल हैं, घरेलू हालात हैं, मुआशरती हालात हैं, फाइनेंशियल हालात हैं, उनकी वजह से कभी भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारा ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसमें से फिर हम इन चीज़ों में से रिवॉर्ड्स और इन फोर्सेस हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ जाते हैं जिस चीज़ से हमें अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये इसमें हमारी बदकिस्मती है कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है पूरी दुनिया में, जिसको हमारे यहाँ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं किया गया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे कुछ जरा सा भी स्ट्रेस हो तो मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा कि मैं इस पे आप अगर कह दें किसी को कि आपको दिखाना होगा कि मैं नफसियाती मरीज हूं, बुरा मानते हैं, यहाँ पे बुरा समझा है कि जी ये पागल हो गया। तो हमारे इस चीज को पढ़ाने की जरूरत है, मेरे ख्याल इसको लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेट के अलावा इसको बचपन से ही स्कूलों से ही बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये बच्चे। लेकिन डॉक्टर साहब अलमिया तो ये है, आप स्कूल की बात करते हैं, नशा जो है, मंशियात जो है, अभी हम जब बात कर रहे थे ऐसे लोगों से तो पता चला कि मंशियात उनको वहां पर ही मुहैया की जाती है। स्कूल के अंदर आजकल बड़ा अलमिया ये कि आइस जो एक नशा है वो स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल तक खुद वहां मिलता है, जहां पे किताबें मिलनी चाहिए, जहां पे लोगों को कलम हाथ में देना चाहिए, वहां पे मंशियात खुद पहुंचाई जा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या रोल देखते हैं आप बीइंग अ डॉक्टर अफरीदी साहब, कि वो इस हवाले से क्या काम कर रही है और कितना काम कर रही है? गवर्नमेंट की सतह पे जितने भी हमारी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे दिल के ऑपरेशन जो है ना वो होते हैं, वहाँ पे ऐसे जो ना मरीजों को कभी भी किसी ने इनकार नहीं किया। लाइक हम उनको उसी तरह जो है ना करते हैं वेलकम, जिस तरह एक आम मरीज, कभी उनको हमने डिले नहीं किया, कभी किसी भी जो ना हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन एज सच स्पेशलाइज जिस तरह जो ना मेंटल हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे इनका रिहैब सेंटर होनी चाहिए और है भी, वहां पे मेरा ख्याल है कि एक दिल का डॉक्टर जिस तरह जो ना वो होना चाहिए कि वो वहां से एक मरीज को आइडेंटिफाई करे कि हाँ इसको हार्ट का मसला शुरू हो गया है, तो वो हम इनिशियल जो है ना स्टेजेस में ही उस डिजीज को पकड़ ले ताकि वो डिजीज और ज्यादा ना हो। हाँ, इस चीज में थोड़ी सी है कमी कि अगर जो ना उस लेवल पे एक जो ना कार्डियोलॉजिस्ट या कोई इस तरह जो उसको आइडेंटिफाई करे, एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, और वो दिल के अस्पताल में या जो दिल का यूनिट है वहां पे उसको जो ना वो रेफर करे, तो मेरे ख्याल में कि उस डिजीज को बढ़ने से हम जो ना वो रोक सकते हैं। लेकिन अलमिया तो ये है कि मुझे लगता है कि 90% जो हमारे इस तरह के मरीज हैं जो नशे के आदी हैं, मेरे ख्याल है कि जो ना 90% मरीजों का कोई इलाज ही नहीं होता। शायद उनको जो ना खुद भी नहीं पता, शायद वो उसी तरह सड़क पे पड़े पड़े मर जाते हैं। शायद उनके जो घर वालों को भी नहीं पता चलता, और हम उसको जो ना नाम जो ना दे देते हैं कि वो नशा ज्यादा लेने से उसकी होगी डेथ। हो सकता है उसके दिल के अंदर कोई हो गया हो मसला, कोई वो दिल का क्योंकि ना उनको कुछ चेकअप करने का कोई इंतजाम है, कोई मामले ऐसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जी डॉक्टर साहब, आप आखिर में क्या कहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से कि उनको कितना काम करना चाहिए? जैसा डॉक्टर अफरीदी साहब ने बताया कि वो लोग जो ना गवर्नमेंट को चाहिए अपने इदारों के अंदर बात करते, आखिर में क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से कि जो एडिक्शन जो लोग करते हैं उनको गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए? हर साल हम देखते हैं गवर्नमेंट बड़े हिस्सों पर काम करती है, लेकिन इस हवाले से गवर्नमेंट का कोई काम नजर नहीं आता। आप क्या कहते हैं?
गवर्नमेंट को जी सबसे पहले तो एजुकेशन हमारी के वालिदैन अगर पढ़े लिखे होंगे किसी लेवल तक तो वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, फिर उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक अगर पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं है तो वो तो जिन भूत और तवीज धागे की तरफ ही जाएगा ना जी, बिल्कुल सही। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे यहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई सबसे पहले, उसके बाद हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम हमारा इस तरह होना चाहिए कि जी आप हर लेवल पे साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, स्कूल्स में भी, BHU लेवल पे भी, हर जगह पे साइकेट्रिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली फिजिशियंस को सपोर्ट करने के लिए, और फिर वो वहाँ से वो आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को तो फिर वो आगे रेफर करें टर्शियरी केयर में, जहाँ पे सारा बोझ प्राइमरी केयर वाला जा रहा होता है। तो बेहतर यह है कि हमारे को रेफरल सिस्टम एक प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ से निचली सतह से पेशेंट वहीं से आइडेंटिफाई हो और वहाँ से एक के ऊपर चले जाए। तो मेरा ख्याल कि रेफरल सिस्टम एक गवर्नमेंट को जरूर अच्छा करना चाहिए, ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम करना चाहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर, अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर नवीद भट्टी साहब हैं। नवीद भट्टी साहब, क्या कहते हैं इस हवाले से? आप किस तरह बात की अपने नौजवानों के हवाले से कि स्कूल कॉलेज के अंदर भी मंशियात मुहैया की जा रही है, तो क्यों नौजवान क्यों इस तरफ आ रहा है? हमारा जो टीन एज का जो नौजवान वो क्यों मंशियात का आदी होता जा रहा है? आप क्या फरमाते हैं? इसके में जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस, बल्कि स्कूल कॉलेज से पहले 7 साल तक बच्चे की जो नफ्सियात हैं, वो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके बिहेवियर्स हैं, वो पक्के हो रहे होते हैं। सही है, आम फहम में कह जाए तो वो 7 साल तक अगर उस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स, टीचर्स, मुआशरा उनके ऊपर वो फोकस रखे, जैसे हमारे पहले बुजुर्ग, मोहल्ले के भी बुजुर्ग बच्चों को डांट दिया करते थे कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अब आप नहीं डांट सकते हैं, क्योंकि हमारे वो इक़दार में ही चेंज आ गई हुई है कि आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वो जवाब दे देते हैं आगे से, बर्दाश्त बिल्कुल ऐसी। एक ये फैक्टर है कि बच्चा जब आपके कहने में नहीं है, बुजुर्ग के कहने में नहीं है, स्कूल के उस्ताद साहब में कहने में नहीं है, जी जी, तो फिर वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा जो उसके लिए अच्छे नहीं हैं। सही, तो वो उसको बुराई की तरफ लेके चले जाएंगे। फिर हमारा अवेलेबिलिटी, कि आप स्कूल के अंदर ही एक चीज अवेलेबल है तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। तो हमारे जो ड्रग के जो कवानीन हैं उनको बहुत सख्त करना चाहिए, ताकि अवेलेबिलिटी नहीं हो। यहाँ तक स्कूल कॉलेजेस में तो बड़े अफसोसनाक है। तो इस हवाले से जो हमारे नौजवान नस्ल है उसको भी मतलब आप नशा ही करना है, जैसे मैंने पहले कहा एडिक्शन और डिपेंडेंस में फर्क है। आपने नशा ही करना है तो चाय का कर लें, सही, आप पढ़ाई का करें, बिल्कुल, आप फूड का करें, चॉकलेट का कर लें, आपने इस चीज का ऐसे मोबाइल का आजकल हो गया है ना सर, तो लेकिन वो भी एक हद तक ठीक है ना। तो ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं डॉक्टर सईद अफरीदी साहब इस हवाले से कि आपकी फाउंडेशन है माशाल्लाह आर्ट पे काम कर रही है गुज़श्ता 4 साल से, तो आप क्या फरमाते हैं कि जो इस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं उनके लिए आपकी फाउंडेशन कोई काम कर रही है? हमारे फाउंडेशन में तो हर तरह के मरीजों के लिए हमने कभी भी किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं किए। सही है। जो नशा करने वाले लोग हैं, जो नशा करने के आदी हैं, वो तकरीबन आज तक मेरे ख्याल में कोई 12 या 13 मरीज हम अभी तक ऑपरेट जो है ना वो कर चुके हैं पिछले जो है ना 3 सालों में। लेकिन उसमें हमारी फैमिली के साथ एक कमिटमेंट जरूर वो हमारे साथ उनको जो है ना करनी होती है। जी। तो उनका रिहैब जो है ना होगा, चलता रहेगा, और नशा इनका जो है ना छुड़वाना है, क्योंकि अगर वो जो है नशा करता है तो फिर नशा करने के बाद बंदा अपने जो ना आप में नहीं होता, उसे अपने आप का नहीं पता होता, अपने जो ना वजूद का पता नहीं होता, तो उसको दवाइयाँ कैसे जो है लेनी है। सही। तो वो अगर जो ना दवाई अगर वो नहीं लेगा, और दिल का वैल हमने किया तब्दील जो 4-4.5 लाख रुपए का प्रोसीजर है, तो फिर हम क्यों ना फिर वो एक ऐसे बंदे पे खर्च करें जो कम से कम अपनी जो ना फैमिली को सपोर्ट तो करे। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक यानी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 13 में से 11 मरीज हमारे पास रेगुलरली जो ना वो आते हैं, और अभी वो नॉर्मल माशरे का हिस्सा बन गए हैं। वो अपना जो ना काम करते हैं। वो 1 या 2 मरीज हैं जो अब जो हमसे जो ना ट्रेस नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि वो बाकी 11 वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका हार्ट भी ठीक काम कर रहा है, और वो यानी दवाइयाँ भी अपनी ले रहे हैं प्रॉपरली, और अपनी जिंदगी के काम में वो लगे हुए कर रहे हैं। अच्छा, तो इस हवाले से बताइए डॉक्टर साहब की फाउंडेशंस हैं, कितनी फाउंडेशंस काम कर रही हैं आपके नज़र में कि इस पे नशे के हवाले से कोई फाउंडेशन आपकी नज़र में है जो ऐसी काम कर रही हैं?
शहर में नहीं, अगर आप देखें जाएं तो आपको इश्तिहार तो 2-4 आपको नजर जो है ना आ जाते हैं, लेकिन अब वो काम कितना करते अच्छा, हैं। फाउंडेशन, आपके पास फाउंडेशन तो मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी एक जो है ना समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजूहत बनती जा रही हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की है कि हमें एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे, यानी रूट लेवल से हमें जो है ना काम करना है। तो जब तक वो काम नहीं होगा, देखो नशा एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर यानी हर जो है टीनेजर के लिए एक जो है ना अट्रैक्शन पाई जाती है, वो उसकी तरफ अपनी तरफ ना खींचता है। वो लोग देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, मुख्तलिफ चीजें, वो उनको अपना एक जो ना वो समझने लगते हैं, आइडियल समझना लगते हैं कि शायद अगर मैं स्मोकिंग करूंगा, असल यानी सबसे पहली चीज स्मोकिंग से ही होती है शुरू, सही। फिर वो ऐसा ऐसा चीज आगे जो है ना वो बढ़ती है, फिर जो ना आइस और जो है इंजेक्टेबल, और सबसे जो ना जो मेन बात है कि जो डॉक्टर साहब ने इसको किया हाईलाइट कि इन चीजों की अवेलेबिलिटी उसको इतना जो ना स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो आम बंदे की पहुंच में ना हो। अगर ये जो ना, बेशक हम यहाँ पे फाउंडेशन 1000 भी हम जो ना खोलें लाहौर के लिए ना, सही। तो वो भी जो ना कम होंगी, ना काफी होंगी। सही। जब तक इसको गवर्नमेंट रूट लेवल से इसको आइडेंटिफाई करके इसको जो है ना खत्म ना कर दे। सही। क्योंकि एक जो ना छोटे बच्चे को वो स्कूल की जो ना पॉकेट मनी पे भी उसको 50-100 रुपए भी उसको एक चीज जो ना मुहैया हो जाती है, तो ये तो बहुत जो ना ये आसान काम है उसके लिए। और बच्चों में इतना जो ना शऊर तो जो ना नहीं होता, वो तो समझते हैं कि चलो यार एक दफा ट्राई करने के लिए कर लेते हैं, और फिर वो ट्राई से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं, जो ना आदी हो जाते हैं। तो ये मेन चीज जो गवर्नमेंट का है कि वो एजुकेशन पे ज्यादा जो ना जोर दे, सही। वालिदैन को करे एजुकेट, बच्चों को साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा किरदार है तो जो ना हर स्कूल में होता है, वहाँ पे साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है बच्चों की, वहाँ पे पहले से ही बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किन के अंदर कितना। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाहूंगा कि फाउंडेशंस अदारे जितने भी होंगे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सही है। जो हमारा जो जैसे आप डायलिसिस सेंटर जितने मर्जी खोल लें, लेकिन जब तक आप ब्लड प्रेशर की प्रिवेंशन पे काम नहीं करेंगे, सही। डायलिसिस तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। आप प्रिवेंशन पे काम करें, बिल्कुल सही। सेंटर बाद में खोलिएगा, तो आप प्रिवेंशन पे काम करें, अदारे जितने भी खुल जाएंगे इलाज तो फिर बाद में। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए, डॉक्टर कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि नशा जरूर करना चाहिए, लेकिन तालीम का नशा कीजिए, आप किताबें पढ़ने का नशा कीजिए, वो नशा करें जो आपको मुस्बत की तरफ लेके जाए, वो जो आपको इल्म की रोशनी फराहम करे। अगर आप जो मंशियात का नशा करते हैं तो आप जो है सोचने से भी आरी हो जाते हैं, आप माशरे के अंदर जो है ज़लीलो ख्वार होकर रह जाते हैं। इकबाल के शाहीन जो हैं, जिन्हें इकबाल ने बहुत तस्करा किया, उन शाहीनों को जब स्कूल में इकबाल के शाहीनों को इन अमराज के बाद